Morning dear students, how are you? I hope you all fit and fine. This is your chemistry class, but before starting the work, let's take pledge against COVID-19. I Ramandeep Kaur commit to be a vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors, to always wear a mask or face cover, especially when in public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. So now let's start with chemistry. In your previous video, we have done up to worksheet 1 and 2. Today we will discuss about worksheet 3, 4 and special worksheet. Worksheet 3, first fill up. The dash of a metal is a list of metals in order of their decreasing chemical activity, that is the activity series. Activity series में metal की list होती है according to their decreasing chemical activity. As you can see on the page number 36, it is the activity series of metal. Activity series of metal is a list of metals in order of their decreasing chemical activities. Learn this series. Next fill up. The dash cannot replace zinc from zinc sulfate. The answer for this is copper. Copper cannot replace zinc from zinc sulfate because zinc is more active than copper. So that's why copper zinc को replace नहीं कर सकता, zinc copper को replace कर सकता है. According to activity series आप देख सकते हो. Next fill up is dash is more active than bromine. Bromine से ज़्यादा active कौन है? That is chlorine. Chlorine is more active than bromine. Next fourth fill up. The most reactive metal occupies the dash position. The most reactive metals occupies the top position. जो most reactive metals होती हैं वो top position अक्कर करती हैं in the reactivity series, and जो least reactivity होती हैं वो bottom में होती हैं in the activity series. Next fill up. A dash reactive metal displaces a less reactive metal from its compound. A more reactive metal displaces a less reactive metal from its compound. जो ज़्यादा reactive metal है वो less reactive metal को displace कर देगी from its compound. Next, complete and balance the following reactions. The first is Cl2 plus Kl give rise to dash plus I2. When chlorine react with potassium iodide, 2 molecules लेंगे यहाँ पे on the left hand side, and it will give rise to products 2 KCl plus I2. यहाँ पे क्या आएगा? 2 KCl. दोनों साइड ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स वो दोनों क्या है? इक्वल नंबर ऑफ एटम्स है. नेक्स्ट Cu प्लस AgNO3 गिव राइज टू डैश प्लस 2 Ag. यहाँ पे आएगा सिल्वर नाइट्रेट के सामने 2 लिखेंगे यहाँ पे. इसके 2 मॉलिक्यूल्स जब रिएक्ट करेंगे देन वी ऑब्टेन CuNO3 ट्वाइस प्लस 2 Ag. नेक्स्ट Cl2 प्लस NaBr गिव राइज टू डैश प्लस Br2. जब क्लोरीन सोडियम ब्रोमाइड के साथ रिएक्ट करेगा इट विल गिव टू सोडियम क्लोराइड प्लस ब्रोमीन. यहाँ पे क्लोरीन ब्रोमीन को डिस्प्लेस कर रहा है क्योंकि जो क्लोरीन है वो ज़्यादा रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू ब्रोमीन. हेयर वी हैव बैलेंस दिस बाय प्लेसिंग 2 with sodium bromide, and it will give rise to 2 molecules of sodium chloride plus bromine. Next equation is when sodium chloride react with silver nitrate, it will give rise to dash plus AgCl. When sodium chloride react with silver nitrate, it will give rise to sodium nitrate plus AgCl. दोनों साइड जो reactant and product हैं दोनों में एटम्स क्या है? वो दोनों सेम है. नेक्स्ट व्हेन NH4CnO react, ठीक है, decomposes in the presence of heat, it will isomers. इसकी जो
सिर्फ स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है। यहाँ पे हमें यूरिया ऑब्टेन हो रहा है, यूरिया का सिंबल है CONH2 ट्वाइस। नेक्स्ट थर्ड पार्ट, गिव योर ऑब्जर्वेशन अलॉन्ग विद इक्वेशन। ऑब्जर्वेशन भी बतानी है और इक्वेशन भी बतानी है। यहाँ पे व्हेन सल्फ्यूरिक एसिड इज एडेड टू बेरियम सल्फेट, जब सल्फ्यूरिक एसिड बेरियम सल्फेट के साथ ऐड करेंगे तो क्या होगा, इट विल गिव हाइड्रोबेरियम सल्फेट। हाइड्रोबेरियम सल्फेट देगा जिसका साइन है BaHSO4 ट्वाइस, जिसको हाइड्रोबेरियम सल्फेट को रिप्रेजेंट करते हैं थ्रू BaHSO4 ट्वाइस। नेक्स्ट, व्हेन सिल्वर नाइट्रेट इज एडेड टू सोडियम क्लोराइड, जब सिल्वर नाइट्रेट को ऐड करते हैं विद सोडियम क्लोराइड देन अ वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ सिल्वर क्लोराइड इज फॉर्म अलॉन्ग विद सोडियम नाइट्रेट सोल्यूशन। जब सिल्वर नाइट्रेट ऐड करेंगे सोडियम क्लोराइड के साथ, इट विल गिव सिल्वर क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्रेट। ठीक है, यहाँ पे वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ सिल्वर क्लोराइड ऑब्टेन होगी। नेक्स्ट, व्हेन सोडियम हाइड्रोक्साइड इज एडेड टू फेरस क्लोराइड, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH ऐड होगा विद फेरस क्लोराइड के साथ, इट विल फॉर्म ग्रीन कलर प्रेसिपिटेट दैट इज FeOH ट्वाइस प्लस 2NaCl, जो ग्रीन प्रेसिपिटेट ऑब्टेन होगी हमें यहाँ पे, और अलॉन्ग विद फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट, व्हेन कॉपर रॉड इज डिस्प्लेस्ड इन सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन, जब कॉपर रॉड को प्लेस करेंगे हम सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन में, देन कॉपर डिस्प्लेसेस सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन, कॉपर सिल्वर को डिस्प्लेस कर देगा। यू कैन सी इन द इक्वेशन, कॉपर एक्ट विद सिल्वर नाइट्रेट एंड इट विल गिव CuNO3 ट्वाइस प्लस 2 Ag, सिल्वर है जो वो डिस्प्लेस हो गया फ्रॉम द कंपाउंड। नेक्स्ट, व्हेन क्लोरीन गैस इज पास्ड इन सोडियम ब्रोमाइड सोल्यूशन, जब क्लोरीन गैस को पास करते हैं हम सोडियम ब्रोमाइड सोल्यूशन में, देन क्लोरीन डिस्प्लेसेस ब्रोमीन फ्रॉम सोडियम ब्रोमाइड, क्लोरीन है वो डिस्प्लेस कर देगा ब्रोमीन को फ्रॉम सोडियम ब्रोमाइड। यू कैन सी इन द इक्वेशन Cl2 प्लस 2NaBr गिव राइज टू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम क्लोराइड प्लस ब्रोमीन। यहाँ पे ब्रोमीन है वो डिस्प्लेस हो रही है क्योंकि क्लोरीन है जो मोर एक्टिव है एज कम्पेयर टू ब्रोमीन। नेक्स्ट, वर्कशीट 4, गिव वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग, गिव केमिकल रिएक्शंस इन विच हीट इज इवॉल्व, वो केमिकल रिएक्शन जिनमें हीट इवॉल्व होती है, रिलीज होती है, उसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शंस बोलते हैं। नेक्स्ट, केमिकल रिएक्शन इन विच हीट इज ऑब्जॉर्ब, वो केमिकल रिएक्शन जिनमें हीट एब्जॉर्ब होती है उनको हम एंडोथर्मिक रिएक्शंस बोलते हैं, एंडोथर्मिक। नेक्स्ट, केमिकल रिएक्शन विच टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो केमिकल रिएक्शन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में होते हैं उनको हम इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं। द रिएक्शन विच प्रोसीड बाय एब्जॉर्बिंग सन्स एनर्जी इज कॉल्ड फोटोलिसिस रिएक्शंस, जो रिएक्शंस सनलाइट को एब्जॉर्ब करके अगर होती हैं उनको हम फोटोलिसिस रिएक्शंस बोलते हैं। नेक्स्ट, टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस स्टार्ट टू बर्न, वो वाला टेम्परेचर जिस पे एक सब्सटेंस है वो बर्न करना स्टार्ट करता है उसको हम इग्निशन टेम्परेचर बोलते हैं। नेक्स्ट, फिलअप डैश रिएक्शंस इन्वॉल्व एब्जॉर्प्शन ऑफ सन्स एनर्जी, कौन सी रिएक्शन में एब्जॉर्प्शन ऑफ सन एनर्जी होती है, दैट इज फोटोकेमिकल। फोटोकेमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व एब्जॉर्प्शन ऑफ सन्स एनर्जी। नेक्स्ट, सब्सटेंस बर्न एट अ टेम्परेचर नोन एज डैश, सब्सटेंस कौन से टेम्परेचर पे बर्न करते हैं, सब्सटेंस बर्न एट अ टेम्परेचर नोन एज इग्निशन टेम्परेचर। नेक्स्ट, पेट्रोल, LPG, केरोसिन आर डैश सब्सटेंसेस, पेट्रोल, LPG एंड केरोसिन कौन से सब्सटेंसेस होते हैं, पेट्रोल, LPG, केरोसिन आर कंबस्टिबल सब्सटेंसेस। नेक्स्ट, डैश वाटर ऑन इलेक्ट्रोलिसिस इन डिकम्पोजेस टू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, एसिलेटेड वाटर ऑन इलेक्ट्रोलिसिस इन डिकम्पोजेस टू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ओनली जो एसिलेटेड वाटर है वही डिकम्पोज होता है बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इट
and it will decomposes to hydrogen and oxygen. Next, complete and balance the following equations. Next, NH4Cl, it will give rise to ammonia NH3 plus hydrogen chloride. Next, potassium nitrate, it will decomposes in the presence of heat and it will give KNO2 plus O2. यहाँ पे हम reactant side पे 2 लिखेंगे to balance on the product side. Here we place 2, then on the product side we also place 2 with KNO2. Next, calcium carbonate decomposes in the presence of light and it will form calcium oxide plus carbon dioxide. Next equation, 3 molecules of oxygen, ठीक है, in the presence of UV light it will form ozone, that is 2 molecules of ozone, 2O3. Next, when magnesium react with nitrogen it will form magnesium nitride, which is represented by Mg3 and 2. Mg, यहाँ पे मैग्नीशियम को बैलेंस करने के लिए 3 प्लेस करेंगे ऑन दी रिएक्टेंट साइड. नेक्स्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द फॉलोइंग एक्टिविटी. वाई मैग्नीशियम रिबन इज चूजन एंड नॉट मैग्नीशियम रॉड. मैग्नीशियम रिबन को क्यों चूज़ करते हैं हम एज कम्पेयर टू मैग्नीशियम रॉड? बिकॉज मैग्नीशियम रिबन प्रोवाइड इंक्रीज एक्सपोजर टू मोर नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स. जो मैग्नीशियम रिबन है उसका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, सो दैट्स वाई मोर नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स को वो प्रेफर करता है एंड दैट्स वाई दस कंप्लीट बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन. सो जिसके साथ जो मैग्नीशियम रिबन की जो कंप्लीट बर्निंग हो जाती है. नेक्स्ट, कैन मैग्नीशियम बर्न विदाउट ऑक्सीजन? यस, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के बिना भी बर्न हो सकती है, एज यू कैन सी इन द इक्वेशन. नेक्स्ट, नेम द प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन मैग्नीशियम बर्न इन जार ऑफ नाइट्रोजन. जब मैग्नीशियम बर्न करेगी विद जार ऑफ नाइट्रोजन देन मैग्नीशियम नाइट्राइट इज फॉर्म, which is represented by Mg3 and 2. Next, give the chemical equation for this. When magnesium burn in jar of nitrogen, when magnesium burn with nitrogen it will form magnesium nitrate, which is represented by the Mg3 and 2 in the solid form. With this your worksheet 3 and 4 completed, and there is a next special worksheet which is on page number 42. Try to do this by yourself. This is a balancing of fractions. Try to do this by yourself. If you have any doubt regarding this, then we will discuss in your online class. Thanks students. Have a nice day.